breaking news coming in from Sambhal in Uttar Pradesh. It seems bulldozers are set to roll out in Sambhal as the UP government is taking action on illegal madrasas. Remember, there is a madrasa which is built on government land, and there is an order, a notice issued for its demolition, and the police and the bulldozers have reached the location, and it is expected that this madrasa will be demolished. Sambhal, which is considered sensitive in terms of religious and communal temperament, and that is because it is expected that the people of Sambhal might be reacting to this, and because of that a huge police presence is also over there. A notice was issued to this madrasa, which is built on around 230 square meters of government land, and now action is taking place. Now, Sambhal is the same place which has experienced significant communal unrest earlier. We saw, most notably in late 2024, clashes breaking out, and even before that, it has been temperamental as far as communal rights are concerned. And today, action is being taken against illegal madrasas which have been built on government land. There was earlier a notice that was issued, and only after that this action is being taken. Right now, the revenue officials and the SDM are also present at the location. The authorities have brought in a heavy police force to take action. As I informed you earlier, 230 square meters of government land is what was occupied illegally, and a madrasa was built over there. The revenue records clearly show this land is not in the name of the madrasa or anybody else. It is actually government land, and it's clearly shown in the revenue records. Joining us right now is India Today's Ashish Srivastava. Ashish, this action that we see on our screens right now, क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि इस वक्त बुलडोजर वहाँ क्या कर रहे हैं? ये पहले की जो जमीन है ये सरकारी उसमें ये पाया गया कि किस तरीके से इलीगल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, जिसके बाद जब वहाँ तहसीलदार और डीएम एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी रिपोर्ट लगाई और उसके सामने आया तथ्य कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया है और सरकारी जमीन किया गया है, और देन इसके बाद ये बुलडोजर एक्शन वहाँ पर शुरू हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार तरीके से संबंध में जो इलीगल प्रॉपर्टीज है उसको लेकर डीएम ने सख्त निर्देश दिया हुआ है कि कहीं भी अगर कब्जा रेवेन्यू विभाग की जमीन से किया गया है तो उस पर वो वहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जाए। इससे पहले हालांकि रजिस्टर किया गया था, परचेज देने के बाद ये दूसरा बार भी बताया गया कि जिसकी ये मदरसा है जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बारे में अगर साक्ष्य है और प्रमाण है तो लेकर सामने उपस्थित हो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जब उपस्थित नहीं हुआ उसके बाद ये फाइनली डेमोलिशन वो लिया गया और आज वो डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, और जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन था वो पूरी तरीके से इलीगल था और इलीगल के रहते ही ये एक्शन किया जा रहा है और इसको पूरी तरीके से नियंत्रण में लिया जाएगा राजस्व विभाग की द्वारा, और इसीलिए डीएम एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ वहाँ राजस्व की टीम मौके पर वो मौजूद है जो इस अवैध अतिक्रमण को एक तरीके से हटाएगी, जो ऑक्युपाइड कर लिया गया और वहाँ पर मिलिट्री का निर्माण कर दिया गया, और जिसको लेकर अब ये काफी ज्यादा और भी जगह पे चेकिंग की जा रही थी कहाँ पर इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लिया गया है और उनको इलीगल तरीके से कब्जा कर दिया गया है, और अब उन पर बुलडोजर चला के कार्रवाई की जा रही, क्योंकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी साफ किया है कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर इलीगल तरीके से उनको ऑक्युपाइड किया गया है उनके रिवेन्यू रिकॉर्ड चेक करने के बाद उन पर बुलडोजर के एक्शन करे जा रहे हैं, और उसी क्रम में संभल का ये एक्शन है वो किया जा रहा है, और लगातार ऐसे में जो भी और जमीनें हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उसके लिए भी रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। जी, Shukriya. Thank you very much, Ashish, for all those details. So clearly this action will continue, as our reporter was telling us. This is not the first action
The campaign is to rid government land of any illegal. प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था, लेकिन इन लोगों की तरफ से अपील करने की बात कही गई थी। फिर प्रशासन की तरफ से जो है समय भी दिया गया, लेकिन जो अपीलेट कोर्ट थे वहां से भी जो है कोई इनको जो राहत नहीं मिली। और उसके बाद अब यहाँ पर 30 दिसंबर को यहाँ पर इस पूरे मदरसे को हटाने की पूरे आदेश की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। और उसके बाद आज यहाँ पर प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची है और यहाँ पर इस पूरे मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखेंगे, देखिए अंदर के हिस्से में आपको जो है एक बुलडोजर अंदर आपको कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा और दूसरा बुलडोजर बाहर की तरफ इस पूरे मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। और देखिए फिलहाल यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देखेंगे तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर एसडीएम आशुतोष तिवारी और नायब तहसीलदार आपको यहाँ मौके पर जो है तस्वीरों में नजर आएंगे। सर, क्योंकि इस तहसीलदार कोर्ट से जो सर इसका पूरा आदेश जारी हुआ था, सर ये क्या था जो सर और कब इसका पूरा आदेश जारी हुआ? ये अभी द्वारा 30 दिसंबर को आदेश हुआ था। बेदखली का इन्होंने रजिस्ट्रेशन डाला था, उसमें द्वारा से इनको बेदखली का आदेश दिया गया, नोटिस दिए गए, इन्होंने न इसको हटाया। उसके बाद 1 महीने के बाद अपील का समय रहा तो वो भी खत्म हो गया, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहड़ थे, जिनका फिलहाल कहना है कि दिसंबर 2025 में इसका पूरा आदेश जारी किया गया था और उसके बाद आज यहाँ पर पूरा बड़ा बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जो किया जा रहा है। और देखिए फिलहाल आपको मैं दिखाऊं, अगर देखिए तस्वीरों में तो देखिए यहाँ आपको भारी पुलिस फोर्स आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएगा, जिन्होंने इन पूरी गलियों के आगे खुद खड़े होकर के मोर्चा संभाला हुआ है। बनियाठेर थाना प्रभारी और इसके अलावा जो अलग अलग थानों की पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। और आप देखेंगे तो देखिए इस पूरे इलाके को फिलहाल खाली करा दिया गया है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, सामान निकलवाया गया था। और उसके बाद देखिए अब जो पीएससी के जो जवान है वो यहाँ पर लोगों को जो है पीछे की तरफ जो है वो यहाँ पर तितर बितर करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से जो आपको देखिए छतों पर अगर आप जो यहाँ देखेंगे तो देखिए रूफ टॉप ड्यूटी भी आपको लगातार यहाँ पर अलर्ट जो नजर आएगी। एक कुछ छतों पर जो है लोग हैं, लेकिन उनकी बराबर वाली छतों पर देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आपको जो है नजर आएंगे, जो कि पूरी तरह से स्थिति पर जो नजर रखे हुए हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई हरकत होगी तो उसकी वो जानकारी अधिकारियों को देंगे। और इसी तरह से लगातार जो यहाँ पर अवैध मदरसा था फिलहाल यहाँ पर उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल बताया यही जा रहा है कि इसके बराबर में जो ये बनी हुई दुकानें हैं इसके बराबर में वो भी जो है सरकारी ज़मीन पर है। लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट में लगातार जो है जारी है इन दुकानों को लेकर के। और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही दिनों के अंदर, जबकि यह तहसीलदार कोर्ट की तरफ से ही पूरा आदेश जो जारी किया जाएगा, उसके बाद इन पर भी आने वाले दिनों में जो प्रशासन का एक्शन है वो देखने के लिए जो फिलहाल जो मिल सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए बिल्कुल अगर मदरसे की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा इस पूरे मदरसे को बनाया गया था कई साल पहले और प्रशासन की तरफ से जो है इसको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई थी लेखपालों की रिपोर्ट पर। उसके बाद ही ये पूरा आदेश जो जारी किया गया। लेकिन इसी के साथ अगर जो है देखा जाए, न केवल ये 230 वर्ग मीटर जगह पर मदरसे का कब्जा था, बल्कि यहाँ इसके बराबर में जो ये पूरी दुकानें हैं, ये दुकानें भी जो है इसी पूरी सरकारी ज़मीन पर जो है बनी हुई है। ये जो आप